السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں نازیہ خان۔ سپورٹس میں ہمارا ساتھ دیں گے ناظرین سمیع اقبال۔ آج ہم کھیل میں بات کریں گے کہ بی پی ایل میں شعیب ملک کی شاندار پرفارمنس کے بدولت کیا کچھ ہوا، اور اس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ٹیم آف دی ایئر کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اور بدلتے موسم کی خبر لیے میں ہوں آپ کے ساتھ عبدالقدیر، اور آج کی خبرنامے میں آپ جان سکیں گے موسم کی تازہ ترین صورتحال، بارش، برف باری کا احوال۔ فی الوقت آپ کو واپس یہ چلیں گے مین ڈیسک کی جانب، اور بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ملک میں بجلی کے تعطل کا سخت نوٹس، فوری بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا حکم۔ وزیر توانائی خرم دستگیر سے رپورٹ طلب، تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل، ذمہ داروں کا تعین کیا جائے، عوامی مشکلات کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، وزیر اعظم۔ ملک بھر میں بجلی کی مرحلہ وار بحالی کا عمل جاری، بجلی کی مکمل بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں۔ ٹرانسمیشن لائنز میں کسی قسم کا خلل نہیں آیا، ترسیل کا نظام مکمل طور پر محفوظ ہے، تمام پاور پلانٹس کو چلانے کی اجازت دے دی گئی ہے، وزیر توانائی خرم دستگیر۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ کسی فورم پر چیلنج نہیں ہو سکتا، پی ٹی آئی کے اعتراضات کا کوئی آئینی جواز نہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوئے، یو ٹرن خان کی سیاست اپنے انجام کو پہنچ چکی، بڑکے مار کر قومی اسمبلی سے جانے والے اب واپسی کے لیے منتیں کر رہے ہیں، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ محسن نقوی کی تقرری آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہے۔ عمران خان کو اصل تکلیف یہ ہے کہ یہ تقرری جادو ٹونے سے نہیں ہوئی، بزدار مسلط کر کے پنجاب لوٹنے والوں، اب سلیکشن نہیں الیکشن ہوں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری پر فورن ایجنٹ اور شوکت خانم کے $30 لاکھ چندے سے کاروبار کرنے والے تکلیف میں ہیں، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا کوئی جواز نہیں تھا، دونوں وزراء اعلیٰ نے آئینی اختیار کا ناجائز اور غیر جمہوری استعمال کیا۔ ملکی معیشت شدید بحران میں ہے، درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان مکالمے کو فروغ دینا ہوگا۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی فارغ ہو چکی ہے، وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق۔ الیکشن کمیشن کی خیبر پختونخوا اور پنجاب کے نگراں حکومتوں کے لیے گائیڈ لائن، صوبوں میں بھرتیوں اور ترقیاتی منصوبوں کے اعلانات پر پابندی۔ نگران حکومتیں انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گی، کسی سرکاری ملازم کی تقرری یا تبادلہ منظوری کے بغیر نہیں ہوگا، سیاسی بنیادوں پر تعینات ہونے والے اداروں کے سربراہوں کو برطرف کرنے کا حکم۔ پاکستان مستحکم ریاست ہے جس کے ادارے مضبوط ہیں، دشمن کے بیانیے کو رد کرنے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا، عسکری اور سیاسی قیادت دہشت گردی کی کمر توڑنے میں کامیاب رہی، پیغام پاکستان کو حقیقت بنا کر عوام تک پہنچانا ہوگا، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال۔ نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان، پالیسی ریٹ میں 1% اضافہ 17% ہو گیا، قرضوں کی کافی ادائیگی کر چکے ہیں جس وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر پر اثر پڑا، مہنگائی پر قابو پانے کے لیے پالیسی ریٹ میں اضافہ کیا گیا، گورنر اسٹیٹ بینک۔ اسٹیٹ بینک نے مخصوص درآمدی سامان کی پیشگی منظوری کی شرط واپس لے لی، بینکس کو ایل سیز کھولنے کی ہدایات جاری، کے پی جی اور پورٹ قاسم پر پھنسے کنٹینرز پر تمام چارجز معاف کر رہے ہیں، سامان محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے، وفاقی وزیر فیصل سبزواری کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ بنو کے علاقے جانی خیل میں بارودی سرنگ کا دھماکہ، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے سپاہی گل شیر شہید، دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں آپریشن جاری، آئی ایس پی آر۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی نام نہاد یوم جمہوریہ سے قبل کرفیو جیسی صورتحال، علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول، داخلی اور خارجی راستوں پر مزید چوکیاں قائم، عوام کے مشکلات میں اضافہ۔ بھارت میں مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتیں ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر، مدھیہ پردیش میں ہندو انتہا پسندوں کا مسلم اکثریتی علاقوں میں مارچ، اشتعال انگیز نعرے، مودی کی انتہا پسند سوچ نے نچلی ذات کے ہندوؤں کی زندگی بھی اجیرن کر دی۔
रूसी फौज की यूक्रेन में पेशकदमी, जनूब में 50 किलोमीटर यूक्रेनी फौज को पीछे धकेल दिया। ब्रसल्स में यूरोपीय मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा का इजलास, यूक्रेन को टैंक्स की फराहमी पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, मरी और शिलास में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर मुकर्रर। हेड कोच के लिए मिकी आर्थर के साथ मामलात 90% तक तय पा चुके हैं। पाकिस्तान या नायब कप्तान मुकर्रर करना मेरा इस्तेहकाक है। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको आगाह करें कि आज सुबह नेशनल ग्रिड में खराबी के बाइस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिसकी बहाली के लिए इकदाम जारी हैं। सुबह 7:34 पर नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रीक्वेंसी कम हुई, जिससे ब्रेक डाउन हुआ। वार्षिक से ग्रिड स्टेशन की बहाली का आगाज कर दिया गया। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और पेशावर सप्लाई कंपनी के कई ग्रिड्स बहाल कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में बिजली के तात्तुल का सख्त नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी है। उन्होंने बिजली की फौरी बहाली के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाने का हुक्म देते हुए कहा कि अवामी मुश्किलात को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर से फौरी रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि बताया जाए कि बिजली का इतना बड़ा बहरान किस वजह से पैदा हुआ, इस बारे में जिम्मेदारों का तयन भी किया जाए। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि शिमाल जनूब में निज़ाम में खराबी की वजह से मुल्क भर में बिजली की फराहमी मुतासर हुई है। बिजली के निज़ाम की मुकम्मल बहाली के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रांसमिशन लाइंस में किसी किस्म का खलल नहीं आया। ब्रेक डाउन की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। मजीद तफसील बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुबह 7:34 पर शुमाल जनूबी निज़ाम में खराबी के बायस मुल्क भर में बिजली की तरसील मुतासर हुई। उन्होंने कहा कि बिजली के निज़ाम को मरहलावार बहाल किया जा रहा है। ब्रेक डाउन की बहाली के लिए सबसे पहले जो कदम उठाया गया वो ये है कि हमारे पास जनूब में एक उच्च के मुकाम पर एक पावर प्लांट मौजूद है जो इस वक्त चल रहा है, जिसके ज़रिए एक समझें कि जजीरा इस वक्त मौजूद है। सखर और उसके इर्द गिर्द नौशहर फरोज़ में, लाड़काना में, खैरपुर नातन शाह तक, ये तमाम वो इलाके हैं जो सैलाब से बहुत मुतासर हुए थे। तो वहाँ एक हमारे पास ऐसा रीजन है पूरा जहाँ बिजली इस वक्त मामूल के मुताबिक फ़राहम की जा रही है, और उसी को इस्तेमाल करते हुए हमने कुछ बिजली जो है वो बलूचिस्तान में बहाल की है और कुछ बिजली पंजाब के जनूब में भी बहाल की है। इसी तरह जो थरकोल के हवाले से हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है बिजली की फराहमी की, तो वो अब कराची इलेक्ट्रिक को जुज़वी तौर पर बड़े महदूद पैमाने पर उन्होंने भी अपनी बहाली का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर तवानाई ने कहा कि तरसील का निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज है। उन्होंने कहा कि तमाम पावर प्लांट्स को चलाने की इजाज़त दे दी गई है। बिजली की बहाली का चैलेंज ये है कि एक एक करके हमें मुल्क के जो तमाम बिजली बनाने के जो कारखाने हैं या प्लांट्स हैं या डैम्स हैं, उनको शुरू करने के लिए भी बिजली की ज़रूरत होती है। तो वो हम इस वक्त उसका इंतज़ाम पिछले घंटों से कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें बिजली फराहम हो जाए, जिसके ज़रिए हम वो सारे प्लांट्स ऑन कर सकें। वज़ीर तवानाई ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर बिजली ब्रेक डाउन की तहकीकात की जा रही हैं। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि PTI वालों ने पहले असम्बली से इस्तीफे दिए और अब वापसी के लिए तड़प रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आला की तकर्री आईनी तरीक़ाकार के तहत हुई है। PTI के एतराज़ात का कोई जवाब नहीं। मज़ीद तफसील बताएंगे आसिम रिजवान। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आईनी और कानूनी तरीके से निगरान वज़ीर आला की तकर्री की। चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस उम्र में अब तमाम रिश्तेदारों के खिलाफ जो है हो गए हुए हैं। जिस तरह बेयकीनी और बेचैनी की फ़ज़ा रोज़ाना वो फैला रहे हैं,
आहिस्ता आहिस्ता वो अपने एक कंप्लीट फेलियर की तरफ जा रहे हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पीटीआई वालों ने पहले इस्तीफे दिए और अब असेंबली में वापस आने के लिए तड़प रहे हैं। जितनी शोर मचा के और जितना असेंबली को गाली गलोच करके इन्होंने इस्तीफे दिए थे, अब वो असेंबली में वापस आने के लिए मरे जा रहे हैं। जिस इलेक्शन कमिश्नर को गालियां देते हैं उससे इंसाफ मांग रहे हैं। अब गलत फैसले जो है इमरान खान के, उसके लिए कौम या अदारे जो है वो कीमत अदा नहीं कर सकते। ये शख्स किसी का भी नहीं है, ना अपने मौसनों का है, ना इस मुल्क का है, ना इस मट्टी का है, ना इस धरती का है। दो चीजें हैं, इक्तदार की हवस और दौलत की हवस। एक सवाल के जवाब में वजीर दिफा ने कहा कि इमरान खान की पैदा करदा मुश्किलात का मलबा दूसरों पर डालना मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 1 इंच जमीन भी दहशतगर्दों के पास नहीं। काबुल और तेहरान के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। तीनों बरादर मुल्कों की सरजमीन कतई तौर पर एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने की किसी को भी इजाजत नहीं देंगे। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के निगरान हुकूमतों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। दोनों सूबों में भर्तियों और तरक्याती मंसूबों के ऐलान पर पाबंदी आयद कर दी गई है। निगरान हुकूमतें इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगी और किसी सरकारी मुलाजिम की तकर्रुरी या तबादला मंजूरी के बगैर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सियासी बुनियाद पर तैनात होने वाले तमाम इदारों के सरबराहों को भी बरतरफ करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि निगरान वज़राए आला आइन के तकाज़ों के मुताबिक जिम्मेदारियों की अदायगियों में सुरखरू होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने पर मोहसिन रज़ा नकवी को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म का यह कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक तकर्रुरी का फैसला किया है। पुरुमीद हूँ कि शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के तमाम तकाज़े पूरे होंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्रुरी पर इमरान खान को असल तकलीफ ये है कि ये अमल जादू टूने से नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक मुकम्मल हुआ है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इस बार बुज़दार मुसल्लत नहीं हुआ। पंजाब लूटने वालों को मालूम होना चाहिए कि अब इलेक्शंस होंगे, सिलेक्शन नहीं। मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला बनने पर फॉरेन एजेंट और शौकत खानम के चंदे से $30 लाख से कारोबार करने वाले तकलीफ में हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हवाबाजी और रेलवे के वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तोड़ने का कोई जवाज़ नहीं था। दोनों वज़राए आला ने आईनी इख्तियार का बेजा, नाजायज़ और गैर जमहूरी इस्तेमाल किया। शाहिद वफा से तफसील जानते हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बातें करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुल्की मईशत शदीद बहरान की जद में है। फौरी इंतखाबात से सूरत हाल मजीद इंतशार का शिकार होगी। महमूद खान साहब और परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली तोड़ने की कोई वजह बयान नहीं की है, और बगैर वजह कि आप दो सूबों की असम्बली को तोड़ के तो कहें कि मैंने आईनी काम किया, तो उसे कौन मानेगा। इलेक्शन जब भी करवाना है उस पर एक इत्तफाक़ राय होना चाहिए कि इसके नताइज को माना जाएगा। उसके तरीक़ाकार पर सियासी जमातों में बात होनी चाहिए और जो रियासती अदारे हैं उनको भी सारी बात उनके नॉलेज में होनी चाहिए ताकि सब एक पेज पर आए इलेक्शन के लिए। वफाकी वजीर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत और दीगर रहनुमा पिछले 5 साल से अदालती कार्रवाइयों का सामना कर रहे हैं, ताहम उनके खिलाफ बदउनवानी का एक इल्ज़ाम भी साबित नहीं किया जा सका। शाहिद वफा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ सर्जरी के बाद सेहतयाब होकर वतन वापस आ रही हैं। अपने ट्वीट में वफाकी वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मरियम नवाज 26 जनवरी को लंदन से रवाना होंगी और 28 जनवरी की शब 8 बजे लाहौर पहुंचेंगी। वफाकी वजीर ने अवाम की दुआओं और नेक तमन्नाओं का भी शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि निगरान वज़ीर आला के लिए मुकम्मल तौर पर आईनी तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि शायद तहरीक इंसाफ को मालूमात नहीं है और उन्होंने उजलत में बात कह दी है। उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक तमाम मामलात चल रहे हैं और आइंदा भी आईनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। नाज़रीन, स्टेट बैंक ने 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करते हुए पॉलिसी रेट 17% करने का ऐलान किया है। कराची में मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि आलमी हालात की वजह से पाकिस्तान पर भी असरात मुरतब हुए हैं और तरसीलात और बरामदात मुतासर हुई हैं। उन्होंने कहा कि कर्जों का काफ़ी अदायगी कर चुके हैं, जिस वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर पर असर पड़ा। बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात और कर्जों की अदायगी की ज़रूरत की वजह से मार्केट में रेट ज़्यादा है। गवर्नर ने कहा कि अभी तक 23 अरब के कर्जों में से $15 अरब के बड़े कर्जे निपटा दिए गए हैं।
कमेटी ने आज फैसला किया है कि पॉलिसी रेट को 1% से बढ़ाया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी रेट जो पहले 16% था वो बढ़ के अब 17% हो गया है। गैर यकीनी की सूरत हाल बैन अवी मार्केट में वो बरकरार है और उसके असरात जो है वो हमारी मार्केट के ऊपर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक्स को एलसीज खोलने और जरूरी अशिया की दरामद को तरजीह देने की हिदायत की है। वफाकी वजीर बहरी अमूर फैसल सब्जवारी ने कहा है कि बंदरगाहों में फंसे कंटेनर्स को क्लियर करने के लिए तमाम वाजिब-उल-अदा सरकारी अदायगियां खत्म कर रहे हैं। वो कराची में वफाकी वजीर तिजारत नवीद कमर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसील हमें बताएंगे जीशान अहमद खान। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल सब्जवारी ने कहा कि एलसी बंद होने की वजह से तकरीबन 8,500 कंटेनर्स बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं, जबकि ताजिर बरादरी, शिपिंग इंडस्ट्री और कंटेनर्स कंपनियों के नुमाइंदों समेत मुताल्लिका फरीकों से बातचीत में मसले का हल निकाल लिया गया है। सबको एक हैंडसम परसेंटेज इंशाअल्लाह ताला वेवर देने जा रही हैं। हमारे शिपिंग लाइंस के जो एजेंट्स हैं उन्होंने भी हमसे कमिट किया है, दे आर कम्युनिकेटिंग विद देयर प्रिंसिपल्स। साथ ही साथ हमारे जितने कंटेनर टर्मिनल्स हैं दे आर कम्युनिकेटिंग विद देयर प्रिंसिपल्स, लेकिन एक सिग्निफिकेंट एक हैंडसम वेवर देने जा रहे हैं। इस मौके पर सेक्रेटरी कॉमर्स साले फारूकी ने बताया कि कीमती ज़र मुबादला बचाने के लिए 15 दिन में बार्टर तिजारत का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जबकि अद्वियात और खाने पीने की जरूरी अशिया के कंटेनर्स को पहले क्लियर कर दिया है। इससे कबल वफाकी वजीर बराए तिजारत नवीद कमर के हमरा इजलास में कस्टम्स, मरकजी बैंक, पोर्ट एंड शिपिंग और दीगर मुतालिका इदारों के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल अहम इजलास हुआ, जिसमें पोर्ट पर फंसे हुए सामान के क्लियरेंस के हल के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब दी गई। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कारोबारी इदारों की सहूलत के लिए मखसूस दरामदी सामान की पेशगी मंजूरी की शर्त वापस लेकर बैंकों को खुराक, अद्वियात, तवानाई जैसी जरूरी अशिया की दरामद की तरजीह देने की हिदायत दी है। स्टेट बैंक ने बैंकों को हिदायत की है कि वो ऐसे तमाम दरामद कुनंदगान को सहूलत फराहम करें जो या तो अपनी अदायगी की मियाद को 180 दिन या इससे जायद तक तोसी दे सकते हों, या जो अपनी जेर अल्तवा दरामदी अदायगियों के तस्फिये के लिए बैरून मुल्क से रकूम का बंदोबस्त कर सकें। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि स्कूलों में बच्चों के 100% दाखिले को यकीनी बनाने के लिए हालात के मुताबिक तरीके अपनाना होंगे। इस्लामाबाद में कौमी कमीशन इंसानी तरक्की के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर अमीरुल्लाह मरवत से गुफ्तगू करते हुए सदर ममलिकत ने प्राइमरी स्कूल्स पर दाखिले की कम शरह पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तालीमी सरगर्मियों के लिए मसाजिद को फजर से ज़ोहर तक बतौर स्कूल इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने जोर दिया कि मकामी सतह पर तालीम की फराहमी, रस्मी और गैर रस्मी तालीम और हुनरमंदी के फ़रोग के प्रोग्रामों की भी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को हुनर की फराहमी के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुरेकार लाया जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत करते हुए इस्लामोफोबिया के खिलाफ इज्तिमाई अज़्म का मुतालबा किया है। अपने मजम्मती बयान में सदर मुमलिकत ने कहा कि आज़ादी इजहार राय की आड़ में इस्लाम की मुकद्दस किताब की तौहीन से अरबों मुसलमानों की जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है। उनका कहना था कि कुरान हकीम की तौहीन का अमल अहमकाना, इश्तियाल अंगेज और इस्लाम मुखालिफ है। सदर मुमलिकत ने कहा कि यह काबिल मजम्मत बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा उसूलों और आज़ादी इजहार राय के जायज़ इजहार के उसूलों के मनाफी है। सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि आलमी बरादरी इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का मुजाहरा करे। अमन के क़याम और शिद्दत पसंदी के खिलाफ बयानिए के लिए इस्लामाबाद में पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि हम दहशत गर्दी से कामयाबी से निपटने में सुरखरू हुए हैं। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि अपने मुल्क में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी नहीं होने देंगे। किबला यास ने कहा कि शिद्दत पसंदी के खिलाफ उलमा एक बयानिए पर मुत्तफिक हैं। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। इंसराद दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और नफरत अंगेजी पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस जिनसे निमटने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाने के लिए इस्लामाबाद में पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मुल्क की अस्करी और सियासी क़यादत ने दहशत गर्दी की कमर तोड़ने के लिए एक प्लान तश्कील दिया और उसमें कामयाब रहे, मगर सोशल मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे को ज़ाइल करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा के अंदर पाकिस्तान को एक मुमताज़ हैसियत हासिल है और फिर ये मुस्लिम दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर है। हमारी ये ताकत पाकिस्तान के दुश्मनों को खटकती है। पाकिस्तानी रियासत मुस्तहकम रियासत है, पाकिस्तानी रियासत के कौमी इदारे मजबूत हैं,
और पाकिस्तानी रियासत का कोई असासा किसी गैर जिम्मेदार शख्स या गिरोह के हाथ लगने का कोई इम्कान नहीं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में इलामा हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि पाकिस्तान अगर किसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करता तो कोई हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। APS सान्हे के बाद की तरह मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। शरारती के इदारे एक जगह खड़े थे तो हम इस बहरान से निकल गए। आलम इस्लाम में जब हम जाते हैं, इराक वाले, शाम वाले, सोमालिया वाले और ममालिक वाले हमसे पूछते हैं कि आपने कैसे दहशतगर्दी पे काबू पाया। हमने कहा हमने अपनी कौम और फौज के इत्तेहाद से इस दहशतगर्दी पे काबू पाया है। आज फिर हमें उसकी जरूरत है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल प्रोफेसर किबला अयाज ने कहा कि जब भी कौम और हालात ने पुकारा उस वक्त उलमाए कराम यकजा हुए। कॉन्फ्रेंस में पूरे मुल्क से उलमा और स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की और दहशतगर्दी के खिलाफ यकसा कौमी बयानिया की तश्कील की जरूरत पर जोर दिया। मरियम मलिक, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। जिला बनू के इलाके जानी खेल में बारूदी सुरंग के धमाके में पाक फौज का जवान शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक जिला खैबर का रिहायशी 24 साला सिपाही गुलशेर जानी खेल में दहशतगर्दों की तरफ से बिछाई गई बारूदी सुरंग पट्टे से शहीद हुआ। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल बरकरार है। जुमेरात को भारत के नाम निहाद यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल भारतीय काबिज फौजियों ने इलाके में खौफ व दहशत का माहौल कायम कर रखा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक वादी कश्मीर और जम्मू में भारतीय फौजियों को भारी तादाद में तैनात किया गया है और इलाके के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी चौकियां कायम की गई हैं। श्रीनगर के क्रिकेट स्टेडियम और जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम की तरफ से जाने वाले तमाम सड़कें रुकावटें लगाकर बंद कर दी गई हैं, जो यौम जमहूरिया की तकरीबात के मरकजी मकामात हैं। लोगों की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखने के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। मकबूजा इलाके के अवाम हर साल 26 जनवरी को भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाने के लिए मुकम्मल हड़ताल करते हैं। हुर्रियत क़यादत ने 26 जनवरी को भारतीय यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाने की कॉल का इयादा करते हुए कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों से जुमेरात को रैलियां और एहतजाजी मुजाहरे करने की अपील की है। हुर्रियत रहनुमाओं गुलाम अहमद गुलजार, गुलाम मोहम्मद खान सोपुरी, जमुर्दा हबीब, जासमीन राजा, फरीदा बहनची, डॉक्टर मसब और अब्दुस्समद इनकिलाबी ने श्रीनगर में अपने बयानात में हिंदवाड़ा और कुपवाड़ा कत्लेआम के शहदा को उनकी बरसियों पर शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो कुपवाड़ा और हिंदवाड़ा कत्लेआम के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए 25 और 27 जनवरी को इन इलाकों में हड़ताल करें। दूसरी जानिब वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं, जिनमें लोगों से भारतीय नाम निहाद यौम जमहूरिया के मौके पर जुमेरात को यौम सियाह मनाने और मुकम्मल हड़ताल करने की अपील की गई है। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों का निशाना सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मसीही, सिख और दीगर अक़लियतें भी हैं। हालिया बरसों में मोदी की इंतहा पसंद सोच ने निचली जात के हिंदुओं की जिंदगी भी अजीरन कर रखी है। आइए देखते हैं अब्दुल्ला शाद की ये रिपोर्ट। मोदी हुकूमत BBC की दस्तावेजी फिल्म दी मोदी क्वेश्चन के बायस बौखलाहट का शिकार है। मोदी को गुजरात मुस्लिम कुछ फसादात का जिम्मेदार करार देने वाली दस्तावेजी फिल्म पर भारत भर में पाबंदी आयद करने पर भारत के मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने सवाल उठाया है कि क्या मुस्लिम कुछ फसादात के वक्त मोदी गुजरात के वजीर आला नहीं थे। बीजेपी सच दिखाने वाली डॉक्यूमेंट्री को तो बंद कर रही है, लेकिन गांधी के कातिल नथुराम गोडसे पर बनी फिल्म को बैन नहीं किया गया। गुजरात में आप नहीं थे मुख्यमंत्री, नहीं थे, मोदी नहीं थे, कोई आया था मार्स से, आपके बारे में BBC कुछ दिखाया तो बड़ी तकलीफ लगी, मिर्ची लगी, बैन। और गांधी को मारने वाले का पिक्चर भारत में रिलीज होगा या बैन होगा, हम पूछना चाह रहे बीजेपी से। मोदी के देश में हिंदू इंतहा पसंद भारतीय अक़लियतों पर मुसलसल मजालम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मार्च किया और इश्तियाल अंगेज नारेबाजी की। इंतहा पसंदों ने भारतीय मुसलमानों से कहा कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहो, वरना कहीं और चले जाओ। इसी के साथ भारत में मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने का हक भी नहीं दिया जा रहा है। कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाली तालिबात के ग्रुप ने मजबूरन भारतीय सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। मोदी के भारत में हिंदू दलित होना भी किसी जुर्म से कम नहीं। भारत के कौमी जराइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत में 2020 के मुकाबले में 2021 में दलितों और कबाइलियों के इस्तेहसाल के वाकयात में 6.4% इजाफा हुआ। भारतीय पुलिस जानबूझकर अक़लियतों और दलितों के खिलाफ जराइम में मुकदमात दर्ज नहीं करती। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, अक़लियतों को अर्ज़ पाकिस्तान में बेहतरीन हुकूक हासिल हैं क्योंकि कायदे आज़म ने ममलिकत खुदादात को ऐसी राह पर डाला जो मजहबी रवादारी की जानिब बढ़ती रहती है।
پاکستان میں 11 اگست اقلیتوں کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقار حیدر۔ آپ آزاد ہیں، آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ یہ تھی وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر جس پر مملکت خداداد آج بھی عمل پیرا ہے۔ پاکستان مذہبی رواداری کی بہترین مثال ہے۔ تقریباً 4% کے قریب بسنے والی اقلیتوں کو مکمل حقوق اور آزادی حاصل ہے۔ یہ پہلا ملک بنا جس میں جوگیندر ناتھ منڈل وزیر قانون بنے، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے یہ بھید بھاؤ ہی دور کر دیا کہ ریاست کا کسی کے دین دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ آزاد ہیں، آپ مندر، گردوارہ، چرچ جانے کے لیے آزاد ہیں۔ جو حکومت ہے اس نے ہمیں کوٹا فراہم کیا ہے، مائنورٹی کی سیٹس ہیں، مختلف کیڈٹس کالج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکالرشپ مائنورٹی کے دی جا رہے ہیں۔ یہ دھرتی گرو نانک جی کی دھرتی ہے، یہ امن کی ہی دھرتی، یہاں سے امن کا پیغام بلند ہوا ہے پوری دنیا میں۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستیں موجود ہیں۔ اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد بغیر الیکشن کے قومی و صوبائی اسمبلی سمیت سینٹ کے رکن منتخب ہوتے ہیں تاکہ اپنی برادری کی نمائندگی کر سکیں۔ پاکستان کی اقلیتیں 11 اگست کو اقلیتوں کا دن مناتی ہیں، جس کی اساس قائد اعظم کی 11 اگست 1947 والی تقریر ہی ہے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے دوسرے کمانڈر امریکی ایئر فورسز سینٹرل کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل الیکسس گرینکووچ نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں علاقائی سلامتی کی صورتحال سمیت دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی کمانڈر نے سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی میں پاک فضائیہ کی کاوشوں کی تعریف کی۔ اس ملاقات میں تربیت اور عملی شعبوں سمیت دو طرفہ عسکری تعلقات مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے نقیب اللہ محسود قتل کیس میں راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پروسیکیوشن ملزمان کے خلاف الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ عدالت نے راؤ انوار سمیت تمام کو بری کر دیا۔ بری ہونے والے دیگر ملزمان میں ڈی ایس پی قمر احمد، امان اللہ مروت اور دیگر شامل ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک روشنی کا مینار ہے۔ ریاست مدینہ کے آفاقی پیغام نے انسانیت کو اپنی طرف کھینچا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہی اللہ کو راضی کرنے کا واحد راستہ ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ ہمیں سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر رہنمائی حاصل کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام نے خواتین کو خاص مقام دیا ہے۔ خواتین کو معاشرے کی ترقی کے لیے اتنا ہی اہم تصور کرنا ہوگا جتنا مردوں کو سمجھا جاتا ہے۔ ترجمان حکومت بلوچستان فرح عظیم شاہ نے کوئٹہ میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ گیم چینجر منصوبے ریکوڈک پر دوبارہ کام کا آغاز نہ صرف بلوچستان بلکہ ملکی معیشت پر بھی مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے پر بھارت کا شرنگیز اور من گھڑت پروپیگنڈا قابل مذمت ہے۔ ترجمان حکومت بلوچستان نے کہا کہ حکومت اقدامات سے صوبے میں جاری آٹے کے بحران پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ پاکستان کی سیکرٹری قومی ورثہ اور ثقافت فارینہ مظہر نے جدہ میں سعودی نائب وزیر ثقافت حامد بن محمد فائز سے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ثقافتی تعاون کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال ہوا۔ فارینہ مظہر اس وقت سعودی عرب کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ انہیں سعودی وزارت ثقافت نے جدہ میں اسلامک آرٹس بینالے کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے جاپان کے کونسل جنرل اور ڈیگری توشوو نے کراچی میں ملاقات کی۔ کونسل جنرل نے سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ کونسل جنرل نے کہا کہ جاپان سندھ میں متاثرین کی بھرپور مدد کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کونسل جنرل کو کراچی کے مختلف واٹر سیکٹر کے پروجیکٹس میں کام کرنے کی دعوت بھی دی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ نظام تعلیم میں مختلف نصاب طالب علموں کی ذہنی اور تعمیری صلاحیتوں میں فرق کا باعث ہے، جبکہ طالب علموں کو دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نصاب میں تبدیلی ضروری ہے۔ وہ بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل ہمیں بتائیں گی عائشہ آفرین۔ اپنے خطاب میں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا کہ نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، ہمیں انہیں دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے روایتی انداز سے ہٹ کر تعلیم و تربیت فراہم کرنا ہوگی۔ تعلیم کا جو نظام ہے یا فقدان ہے وہ بہت سیریس ہے۔ ہم
اس کو اگنور کرتے چلے آئے ہیں، لیکن اب یہ وقت کی ضرورت بن چکا ہے کہ اس میں سب آگے بڑھیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ میں تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے مناسب بجٹ تفویض کیا جاتا ہے، تاہم تعلیم کے شعبے میں گورننس کے مسائل کو ابھی مزید حل کرنا ہے۔ تقریب سے منتظمین اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور بتایا کہ کووڈ کے بعد آن لائن تعلیم کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے، جبکہ اس شعبہ تدریس نے دور دراز علاقوں کو بھی جدت اور جدید ریسرچ اور ٹیکنالوجی کی اہمیت سے روشناس کرایا ہے۔ کانفرنس میں بڑی تعداد میں طلباء و طالبات، دانشور، محققین اور بین الاقوامی ریسرچر بھی شریک ہوئے۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، بڑھتی ہوئی آلودگی کے خاتمے اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کچرے کو قابل استعمال بنانے کے لیے نت نئے تصورات پیدا ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں صبا جاوید۔ دنیا بھر میں کچرے کو ٹھکانے لگانے کے ساتھ ساتھ اس کچرے سے مختلف بنیادوں پر فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے، جیسے توانائی کے متبادل منصوبے، ری سائیکلنگ سے تیار کردہ مصنوعات وغیرہ۔ ایسے ہی ایک منصوبہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی طرف سے کراچی میں شروع کیا جا رہا ہے، جس سے ماحول کو نقصان پہنچائے بغیر کچن کے کچرے سے کھاد اور پلاسٹک سے دانہ بنایا جائے گا۔ اس تمام تر منصوبے کو ہریالی ہب کے نام سے متعارف کرایا گیا ہے۔ یہ ایک سرکل اکانومی کے کانسیپٹ پہ بیسڈ پروجیکٹ ہے جو لوگوں کے لیے گرین جابز کریٹ کر رہا ہے اور گرین سولوشنز جو کراچی جیسے ایک میٹروپولیٹن سٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ This has an environmental advantage, of course, because the effective recycling of waste helps to combat climate change. یہ منصوبہ شہر کو صاف ستھرا اور سرسبز بنانے کے اقدامات کا حصہ ہے، جس میں حکومت سندھ کو ٹیئر فنڈ اور UK-8 کا تعاون حاصل ہے۔ ایسے دوسرے منصوبوں پر بھی کام جاری ہے جس میں کچرے کی ری سائیکلنگ سے اس کے بہتر استعمال کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس ادارے کی خدمات قابل تعریف ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ساتھ مل کر اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھیں۔ صبا جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ چارسدہ کا روایتی کپڑا خمتا اپنے منفرد معیار اور مناسب قیمت کی وجہ سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے جو تفصیل ہے وہ ان سے ہمیں آگاہ کریں گی رحمہ گل۔ چارسدہ کے علاقے رجڑ میں ہاتھ سے تیار ہونے والا کپڑا کھدر یا خمتا علاقے کی پہچان ہے۔ شہری مقامی طور پر تیار یہ کپڑا اپنے لیے بھی خریدتے ہیں اور سوغات کے طور پر دوستوں اور رشتہ داروں کو تحفے کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ ٹیپیکل کپڑا یہاں کا مشہور کھدر ہے، کئی برسوں سے یہ بہت مشہور ہے۔ یہ میں نے اپنے لیے 2 سوٹ لیے اور ایک چادر لیا، چادر بھی بڑی خوبصورت ہے۔ کھدر یا خمتا نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ممالک بھی اپنی پہچان رکھتا ہے۔ مقامی کاریگروں کا کہنا ہے کہ صدیوں پرانے طریقے سے یہ کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ دکان پہ ہمارا کپڑا ہے نا، یہ الحمدللہ ادھر خود بنتا ہے، یہ ہینڈ میڈ سوٹ ہے۔ یہ اوروں کی نسبت جو مشینی قدر ہے، مشینی کپڑا ہے، اس کی نسبت بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور ماشاءاللہ یہ سارا مارکیٹ جو ہے نا، یہ قدر کی مارکیٹ ہے، ادھر بہت دور دور سے لوگ ادھر کے آتے ہیں اور یہ لے کے جاتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی چارسدہ کے علاقے رجڑ کی مخصوص آبادی کپڑا بنانے کے اس کاروبار سے وابستہ ہیں۔ ان چھوٹی صنعتوں کی ترقی پر توجہ دی جائے تو یہ ملک کی معیشت میں کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ موسم سرما میں کھدر یا خمتا خریدنے کے لیے ملک کے دور دراز علاقوں سے لوگ چارسدہ کا رخ کرتے ہیں۔ اس جدید دور میں بھی یہاں کے کاریگر کھڈی پر کپڑا تیار کرتے ہیں جو گرم ہونے کے ساتھ پائیدار بھی ہوتا ہے۔ رحمہ گل، PTV نیوز، پشاور۔ ناظرین، لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما ریٹائرڈ کیپٹن محمد حفظ نے کہا کہ ملک کی سیاست کی نئی سمت کا تعین ہونے جا رہا ہے۔ تمام جمہوری قوتیں مل کر وطن عزیز کو بحرانی کیفیت سے نکالیں گی۔ انہوں نے کہا کہ 2017 میں نواز شریف کو منصوبے کے تحت سیاسی منظرنامے سے ہٹایا گیا اور ترقیاتی عمل کو روک دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون عوام کی رائے کو فوقیت دیتے ہوئے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھے گی۔ 28 جنوری کو وطن واپسی پر مریم نواز کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں واٹر کلر ڈے کی مناسبت سے ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔
वाटर कलर पेंटिंग की तारीख सदियों पुरानी है। आर्ट हमेशा हमारे कदीमी ख्यालात और जज्बात के इजहार का एक जरिया रहा है। अलहमरा आर्ट काउंसिल में एक रोजा वर्कशॉप का मकसद नौजवान मुसव्वरों को वाटर कलर मीडियम की मुख्तलिफ महारतों से आगाही के साथ साथ पेंटिंग की नई जिहतों से रूशनास करवाना है। वाटर कलर भी उसी तरह का एक मीडियम है जिस तरह से बाकी मीडियम से है। ऑयल मीडियम है, जैसे एक्रेलिक है, जैसे पेस्टल है, ठीक है, तो ये वाटर कलर भी उसी तरह से एक मीडियम है। ऑयल पेंट और एक्रेलिक पेंट बताया जाता है हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर। मेरी ये दरख्वास्त है उनसे कि एक पोर्शन या एक डिपार्टमेंट चाहे छोटे पैमाने पर ही हो, वाटर कलर का जरूर होना चाहिए। अलहमरा आर्ट काउंसिल नौजवानों को तमाम फनून लतीफ़ा के मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। हमारे यहाँ वाटर कलर की जो तहजीब है वो तुर्की से आई है। वाटर कलर में अंदर भी बहुत ज़्यादा स्टाइल्स आ चुके हुए हैं। उन सारों से महजूज हों बच्चे और उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो। मुझे हमेशा से बड़ी दिलचस्पी रही है वाटर कलर सीखने के लिए। ये बड़ा मुख्तलिफ, बड़ा मुनफरिद मीडियम है और बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है इसको करके। वर्कशॉप में 100 से ज्यादा आर्टिस्टों ने शिरकत की। सेशन के इख्तिताम पर नौजवान मुसव्वरों को सर्टिफिकेट भी दिए गए। वर्कशॉप के इनेकाद का मकसद नौजवान नस्ल में वाटर कलर की अहमियत को उजागर करना है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। आलमी मंजरनामे पर नजर डालते हुए सबसे पहले आपको आगाह करें कि रूसी फौज ने यूक्रेन के साथ लड़ाई में ज़ापोरिज़िया के मुहाज पर पेशकदमी की है। वजारत दिफा के मुताबिक मॉस्को के दस्तों ने 50 किलोमीटर जनूब में यूक्रेनी फौज को पीछे धकेल दिया है। खार्किव और रोगोव के इलाकों में भी झड़पों के इत्तलात हैं। यूक्रेनी दस्तों ने डोनेट्स्क के मुहाज पर रूसी ठिकानों पर गोलाबारी की है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक झड़पों में एक शख्स हलाक और 9 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। यूक्रेन को टैंकों की फराहमी के मामले पर गौर के लिए यूरोपीय मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा का इजलास ब्रसल्स में हुआ, जिसमें यूक्रेन के लिए मजीद इमदाद की फराहमी पर गौर किया गया। शुरका ने जर्मनी पर जोर दिया कि वो यूक्रेन को लेपर्ड टैंक फ्राहम करे। वज़ीर ख़ारजा एनालिना बेरबोक का कहना था कि अगर पोलैंड जर्मन साख्ता लेपर्ड टैंक यूक्रेन को भेजना चाहता है तो जर्मनी इसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। लिथुआनिया और लिथुआनिया के वज़ीर ख़ारजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस मामले में मजीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। उधर यूरोपीय यूनियन यूक्रेन के लिए मजीद 50 करोड़ यूरो की अस्करी इमदाद का जायजा ले रही है। सरबराह यूरोपीय खारजा पॉलिसी जोसेफ बोरेल ने इस उम्मीद का इजहार किया कि रुकन ममालिक इसके जल्द मंजूरी देंगे। पेरिस में जर्मन चांसलर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि टैंक भेजकर सूरत हाल मजीद ख़राब नहीं करना चाहते, ताहम इस इम्कान को मुस्तरद भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि फ्रांस को अपनी सलामती के खतरे में नहीं डालनी चाहिए। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि हथियारों की तरसील के तमाम फैसले अमेरिका समेत तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर किए जाएंगे। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन का गैर एलानिया दौरा किया और कीव में सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने जंग की सूरत हाल समेत अस्करी इमदाद के हवाले से तबादला ख्याल किया। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा इजलास के दौरान ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन की वजह से पाबंदियां लगाई गई हैं। नई पाबंदियों में 37 ईरानी शख्सियात और इदारों को ब्लैक लिस्ट करके उनके यूरोप में दाखिले समेत असासे मुंजमद किए जाएंगे। मुजाहिरों के दौरान ईरान में मुतअद्दिद यूरोपीय शहरियों को भी हिरासत में लिया गया है। उधर यूरोपीय पार्लियामेंट ने यूरोपीय यूनियन से पासदाराना इनकलाब के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। इससे कबल ईरान ने यूरोपीय यूनियन को पासदाराना इनकलाब के खिलाफ कार्रवाई करने से खबरदार किया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में ख़वातीन समेत एक जामी हुकूमत के क़याम का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आमना मोहम्मद ने अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ख़वातीन और लड़कियों को मुआशरे से खारिज नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान को ख़वातीन को भी हुकूक देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में सेहत के शोबे में कुछ बेहतरी आई है, तहम इस पर मजीद काम करने की ज़रूरत है। आमना मोहम्मद ने रवा हफ्ते काबुल में तालिबान की क़यादत से होने वाली गुफ्तगू का जिक्र करते हुए कहा कि बुरी हुकूमत से ख़वातीन की तालीम और काम के हवाले से बातचीत की हुई थी। बहुत सी अफगान ख़वातीन अपने बच्चों का पेट पालने के काबिल नहीं, इसलिए उन्हें काम की इजाज़त दी जाए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के इलाके मॉन्टे पार्क में फायरिंग के वाक़े में मुलव्विस मतलूब शख्स
मुर्दा हालत में पाया गया। लॉस एंजलिस पुलिस के मुताबिक पुलिस मतलूबा मुलजिम की तलाश में एक वैन के करीब पहुंची तो फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, जिससे मतलूबा शख्स वैन के अंदर मुर्दा हालत में पाया गया। उसकी शनाख्त 72 साल हुकैन तुरान के नाम से हुई है। गुज़श्ता रोज़ एक मुश्तबा शख्स की फायरिंग से 5 खवातीन समेत 10 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए थे। वाक़े के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने तमाम सरकारी इमारतों पर परचम सिरनगू करने का हुक्म दिया है। एलामिया के मुताबिक अमरीकी परचम तमाम सरकारी, नीम सरकारी दफातर, सफारतखानों और काउंसलेट में 26 जनवरी तक सिरनगू रहेगा। उधर अफ्रीकी मुल्क कांगो में शिद्दत पसंद ग्रुप के हमले में कम अज कम 24 अफराद हलाक हो गए हैं। मकामी हुकाम के मुताबिक हमलावरों ने शुमारी क्यूवो सूबे के बैनी इलाके में शहरियों को निशाना बनाया। हमलावरों का ताल्लुक बदनाम ज़माना ग्रुप अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस से है। मकामी सिविल सोसाइटी के एक कारकुन ने बताया कि अस्करियत पसंदों ने गांव में कई घरों और दुकानों को लूटा और फिर नजर आतिश कर दिया। थाईलैंड में ट्रैफिक हादसे के बाद होने वाले धमाके में 2 बच्चों समेत 11 अफराद हलाक हो गए। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मट्रापाप हाईवे पर एक तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ से टकरा गई। हादसे के बाद एक धमाके से गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी में 12 अफराद सवार थे। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। नाज़रीन, यूरोप में शदीद बर्फबारी और सर्दी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो चुका है। स्पेन, बेल्जियम और क्रोएशिया समेत दीगर मुल्कों में बर्फबारी की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई है। बर्फबारी की वजह से मामूल की सरगर्मियां भी मुअत्तल होकर रह गई हैं। मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान 6.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। चीन में नए कमरी साल के आगाज के मौके पर रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। चीन में मुख्तलिफ मकामात पर मूसीकी के साथ आतिशबाजी ने आसमान पर कौसो कज़ा के रंग बिखेर दिए। मशरकी और वस्ती चीन में दिलकश रंगों में लहलहाते फवारों ने चीन के नए साल की खुशियों को दोबाला कर दिया। रात की तारीकी में आसमान पर फैलने वाली रोशनी ने शहरियों मीलों दूर तक शहरियों के लिए खुशी का समा बांध दिया। सुबह जियोगजू में जिंजी झील के किनारे भी फाउंटेन शो का इनेकाद किया गया। फलकबोस इमारतें भी जगमगा उठीं। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में भी चीन के नए साल के आगाज की खुशी में एक पुरवकार परेड का एहतमाम किया गया। मौसम सरमा की यकबस्ता शामों को अलविदा कहने के साथ मौसम बहार का भरपूर खैर मकदम किया गया। नए साल के आगाज पर रिवायती लिबास में मलबूस 600 से ज्यादा अफराद ने लालटेनें उठाई परेड में शिरकत की। इस मौके पर ड्रैगन और शेर डांस की रिवायती परफॉर्मेंस के साथ आतिशबाजी भी की गई। उधर रंग बिरंगे गुले लाला ने माहौल की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टरडैम में नेशनल ट्यूलिप डे का इनेकाद किया गया। इस दिन 18,000 से जायद शहरी म्यूजियम टेन स्क्वायर जमा हुए और अपनी अपनी पसंद के फूलों का इंतखाब किया। इस मौके पर बागबानों की जानिब से हर शहरी को 20 फूल मुफ्त दिए गए। नाजरीन, खेल में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं सेमी इकबाल और सबसे पहले खेल में बात करते हैं पीसीबी के हवाले से। आपको आगाह करते चलें कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद को कौमी टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। तफसील जानते हैं मौज़मुद्दीन की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद को कौमी टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया। इस मौके पर नजम सेठी ने कहा कि सिलेक्शन कमेटी के बाकी अरकान का ऐलान मुशावरत से बाद में किया जाएगा।
انہوں نے کہا کہ ایشین کرکٹ کونسل کی میٹنگ بہت عرصے سے التوا کا شکار تھی، لیکن 4 فروری کو بحرین میں میٹنگ کے لیے ایشین کرکٹ کونسل کو راضی کر لیا ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ وی ہیو مینیج ٹو کنونس دی ایشین کرکٹ کونسل کہ 4 فروری کو بحرین میں ایشین کرکٹ کونسل بورڈ کی میٹنگ ہے and I will be attending it. نجم سیٹھی نے کہا کہ پچز کا مسئلہ اہم مسئلہ ہے جس کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے، جبکہ راولپنڈی اسٹیڈیم کا ڈی میرٹ پوائنٹ واپس ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کی پوزیشن کے لیے مکی آرتھر کے ساتھ معاملات 90% حل ہو چکے ہیں۔ جو ڈی میرٹ دی تھی انہوں نے واپس لے لی ہے۔ So we have succeeded in persuading the ICC کہ آپ کا جو فیصلہ تھا آپ کے ریفری کا وہ غلط تھا۔ Hopefully very soon we may give you the news that Mickey will be joining us. چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نے کہا کہ اپنی کور ٹیم کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں اور خوشی کی بات ہے کہ وہ سب واپس آنے پر رضامند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیصلے مشاورت سے کرتا ہوں، قومی ٹیم کا کپتان یا نائب کپتان مقرر کرنا آئینی حق ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی بہتری کے لیے مشکل فیصلے بھی کرنے پڑے تو کروں گا۔ عظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ جنوبی افریقہ میں انڈر 19 ویمنز T20 ورلڈ کپ کے دلچسپ مقابلے جاری ہیں۔ سپر 6 مرحلے میں پاکستان نے آئرلینڈ کے خلاف 7 وکٹوں سے کامیابی سمیٹی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے T20 ٹیم آف دی ایئر کا اعلان کر دیا۔ مینز ٹیم میں پاکستان کے 2 جبکہ ویمنز میں 1 کھلاڑی شامل ہے۔ مینز T20 ٹیم آف دی ایئر کا کپتان انگلینڈ کے جوش بٹلر کو مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان کے محمد رضوان اور فاسٹ بولر حارث رؤف بھی شامل ہیں۔ دیگر کھلاڑیوں میں ویرات کوہلی، سوریا کمار یادو، گلین فلپس، سکندر رضا، ہاردک پانڈیا، سیم کرن، ونندو ہسارنگا اور جوش لٹل شامل ہیں۔ نیوزی لینڈ کی سوفی ڈیوائن کی قیادت میں ویمنز T20 ٹیم آف دی ایئر میں پاکستان کی ندا ڈار کا نام بھی شامل ہے۔ ٹیم میں بھارت کے 4، آسٹریلیا کے 3 کھلاڑی شامل ہیں، جبکہ پاکستان، نیوزی لینڈ، انگلینڈ اور سری لنکا سے ایک پلیئر نے جگہ بنا لی ہے۔ ناظرین، پاکستان اور آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیمیں ون ڈے سیریز کے بعد T20 سیریز کے لیے تیار ہیں۔ سڈنی میں کھیلے جانے والا پہلا T20 میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7:45 پر شروع ہوگا۔ T20 سیریز کا دوسرا میچ 26 جنوری کو ہوگا اور تیسرا 29 جنوری کو کینبرا میں شیڈیول ہے۔ T20 سیریز سے قبل قومی خواتین کرکٹرز نے سڈنی میں بھرپور تربیتی سیشن کیا اور کھیل کے تینوں شعبوں پر بھرپور توجہ دی۔ ون ڈے سیریز 3-0 سے میزبان ٹیم کے نام رہی تھی۔ السلام علیکم، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں، پنجاب، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران کشمیر میں بعض مقامات پر درمیانی سے تیز بارش اور برف باری کا بھی امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ اور اب بات کریں گے ملک میں کم سے کم درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے لیہ کی، جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت -13، کلات -8، گوپس -7، کالام -6 اور ہنزا میں کم سے کم درجہ حرارت -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب ملک کے بڑے شہروں کے درجہ حرارت کی بات کریں تو اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 2، لاہور 7، کراچی 8، پشاور 4 اور کوئٹہ میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی بلیٹن پہنچا اپنے اختتام کو۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔